Yeah, 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 you are audible. Yeah. So, hello and good evening, everyone. Today, I, Shubhankari Rai, feel extremely privileged on the behalf of Public Policy and Opinion Cell, which was earlier began with the name of Students' Opinion Society and started with a vision to draw the opinions and cognizance of undergraduates on certain issues, is now flourishing by organizing and planning sessions for us and has turned into an independent cell. It is a cluster of like-minded and motivated peers, passionate to dive deep into political, geopolitical, historical, geographical, and economics-related issues. It gives an edge over for a healthy discussion. The student-run group began its journey 3 years back as a hobby group, and thereafter it never looked back and proudly boasts of having hosted 3 successful editions of Policy Conclave, the annual policy summit of IIT Kanpur. Well, now on its behalf, I ecstatically welcome our guest speaker, Mr. Rajat Sharma, sir, Chairman and Editor-in-Chief of India TV. This session, which is named as the keynote session, will be hosted by our host, Mr. Soumya Misra. I welcome you too. So let us ourselves get acquainted with our host. Mr. Soumya Misra is a versatile electrical engineer from IIT Kanpur itself and the founder of Samachar. So talking about the Samachar, so Samachar is a modern news platform available as a mobile app with a vision to spread knowledge through news. The app has daily news in beautiful images. Their custom weekly news content goes to 45,000 plus college students. His diverse interests and experience span from quizzing to writing to engineering, design, as well as product. He was published as an author at the mere age of 15. He has multiple papers in nanoelectronics in top international journals, has designed GPUs at Intel and has led smartphone design and manufacturing at Creo, acquired by the Hive. So I would like to call Soumya Misra, sir, to start the proceedings. And we are fortunate enough that we would get the opportunity to see you, sir. And now you're in good shape and good to go. Thank you so much. Thank you, Shubhankari. Thank you, Shubhankari, for the really glowing intro. It's great to be back to an event hosted by my alma mater, IIT Kanpur, although the pandemic has forced us to do this digitally. Welcome everyone to IIT Kanpur's Policy Conclave 2021. Today we have with us Shri Rajat Sharma to discuss the role of media in the evolution of democracy. Rajat Sharma has been one of the leading luminaries and first movers in the news space in post-liberalization India. He became a household name in the 90s with his first show Aapki Adalat, an interview program structured as a courtroom cross-questioning of famous guests. He started his journalistic career in the 80s in print media and has served as editor for Onlooker, Sunday Observer, and The Daily. In the 2000s, he helmed his own network, India TV, one of the most popular players in the Hindi news segment. A Padma Bhushan recipient, Rajat ji also serves as the president of the News Broadcasters Association of India and as vice president, strategic affairs of the Indian Broadcasting Foundation. A very warm welcome, Rajat ji. It is indeed an honor to host you. Thank you. Please share a few words with our audience. Thank you. सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स का। आपने ये मौका दिया आपसे बात करने का। आप जानते हैं कि कोरोना ने हम सबका जीने का तरीका बदल दिया है, दुनिया में आने का तरीका बदल दिया है, दुनिया से जाने का तरीका बदल दिया है। तो इसलिए इस बदले माहौल में नॉर्मली आपके सामने रूबरू होके बात करते तो और अच्छा रहता। आपका और हमारा ये जो बात करने का तरीका है ये बदला है, लेकिन आपने पॉलिसी कॉन्क्लेव किया, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं ऐसा एक्सपर्ट तो नहीं हूं जैसे आप सब लोग अपने अपने फील्ड्स में एक्सपर्ट हैं, लेकिन जिंदगी के कुछ अनुभव हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, मेरी लाइफ के, मीडिया के, आपकी अदालत के। और शायद यही अनुभव है जो अगर आपके कुछ काम आए तो मुझे लगेगा कि मेरा आपसे बात करना सफल हुआ। सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं,
हम कितने भी बड़े बन जाएं, हमें अपनी जमीन को, अपने अतीत को, अपने पास्ट को कभी नहीं भूलना चाहिए। किसी शायर ने कहा है कि आसमां पे ठिकाने किसी के नहीं होते, आसमां पे ठिकाने किसी के नहीं होते, और जो जमीन के नहीं होते वो किसी के नहीं होते। और मैंने हमेशा कोशिश की है कि अपनी जिंदगी से सीखें और अपनी जिंदगी के जरिए दूसरे लोगों को अगर कुछ मैसेज दे सकें, अपने अतीत से, अपने पास से, अपने अनुभव से। जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया वो लोग चाहते थे कि मैं अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बातें शेयर करूं। जो बायोडेटा आपने सुना, जो इंट्रोडक्शन आपने सुना, असल में जिंदगी इतनी सेक्सी नहीं है, इतनी आसान भी नहीं है। और जिंदगी की शुरुआत तो बिल्कुल ही मुसीबतों से भरी थी। मेरा बचपन, शुरुआत के दिन मेरी जिंदगी की ताकत बने बाद में, लेकिन वो वक्त बड़ा मुश्किल का वक्त था। पुरानी दिल्ली में सब्जी मंडी के एरिया में एक 10 बाय 10 के कमरे में 7 भाई, एक बहन, एक माँ, एक बीमार पिताजी, 10 लोग रहते थे। इतनी जगह नहीं थी कि हम उस में फर्श पर एक साथ सो पाए। तो जैसे कपड़े की दुकान में थान बना रखने के लिए तख्ते लगा देते एक दूसरे के ऊपर, तो ऐसे तख्ते लगाकर एक के ऊपर एक सोते थे। कभी कभी ऊपर से गिर भी जाते थे नीचे। घर में बिजली नहीं थी तो रात को पढ़ने के लिए बगल में एक रेलवे स्टेशन था, वहां जाता था। 24 घंटे वहां लाइट होती थी। पानी नहीं था घर में, नल तो नहीं था, तो गली के नुक्कड़ पे एक नल था, वहां जाके हम सारे जो भाई थे वो वहां नहा लेते थे पब्लिक के नल पे। और 2 बाल्टी पानी, एक माँ के लिए एक बहन के लिए, वो लेकर के आ जाते थे। खाने को कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। उस जमाने में अमेरिका से गरीब लोगों के लिए मुफ्त के पाउडर के दूध के डिब्बे आया करते थे, तो वो लाइन में लग के वो डिब्बे ले आते थे घर पे, और उसको उबाल करके उससे कई कई दिन काम चलता था। लेकिन इस संघर्ष में, इस तकलीफ में, हमारे जो बाबूजी थे वो बहुत हिम्मत देते थे। वो कहते थे कि कभी संघर्ष से डरना नहीं। एक दिन मैंने कहा बहुत दुखी होकर कि कितनी तकलीफ है, ना अच्छा खाने को है, ना पहनने को कपड़े हैं, ना अच्छा स्कूल है। तो उन्होंने कहा कि अगर अच्छा स्कूल होता, अच्छे कपड़े होते, तुम्हारे पास में अच्छा घर होता, और फिर तुम खुश रहते, तो कौन सी बड़ी बात थी। अभाव में, तकलीफ में, संघर्ष में खुश रह के दिखाओ, तो ये बड़ी चुनौती। और यही बात मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहता हूं कि तकलीफें तो आएंगी, चुनौतियां तो आएंगी, चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन उसमें भी अपना संयम नहीं खोना, उसमें घबराना नहीं, और उनका मुकाबला करना। बाबूजी हमेशा कहते थे, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े चोट हथौड़े की, तब तक पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। संवारने के लिए, मूर्ति को बनाने के लिए भी हथौड़े की चोट तो लगानी पड़ती है। और जीवन बहुत सारे अवसर देता है, मौके देता है। जब आपको मौका मिले, उस मौके का, उस अपॉर्चुनिटी का पूरी तरह से इस्तेमाल करें। मुझे मीडिया में आने का मौका मिला। 10 साल जब मैं प्रिंट में था तो कोई ऐसा नाम नहीं था। अखबार के एडिटर थे, फेसलेस एडिटर्स होते हैं, अपनी राय कर रख सकते थे, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की। जो भी जिम्मेदारी मिली उसको निभाया, उसमें उतना नाम किया। लेकिन फिर जीवन ने एक और अवसर दिया, जिसने जीने का तरीका बदल दिया। जब मैंने आपकी अदालत शुरू किया, तो ये मुझे कोई टीवी पर प्रोग्राम करने का कोई अनुभव नहीं था।
परिवार में कोई ऐसा नहीं था जिसने कभी मीडिया में, कभी टीवी में काम किया हो, लेकिन मुझे लगा एक अवसर है और इस अवसर का पूरा पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद जो हुआ उसका जिक्र सब लोग करते हैं, सब लोग जानते हैं। आपकी अदालत ने कैसे एक साधारण से इंसान को, जिसको दुनिया में कहते हैं अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया, फर्श से अर्श तक, जमीन से आसमान तक। लेकिन तब भी एक बात जरूर मैंने हमेशा कोशिश की कि जो भी लोग आपकी अदालत में आए, जो भी लोग मेरे मेहमान बने, उनसे वो सवाल पूछे जाएं जो आम लोगों के मन में, जो आम जनता जानना चाहती है, जो मैं एज एडिटर पूछना चाहता हूं वो नहीं। और मैं हमेशा मीडिया के अपने साथियों से यही कहता हूं कि जब हम कोई न्यूज रिपोर्ट करें, जब हम कोई शो करें, जब हम किसी से सवाल पूछें, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम वो सवाल पूछे जो आम आदमी के मतलब के सवाल है, वो सवाल नहीं जो एडिटर के मतलब के सवाल है, जो मेरे मतलब के सवाल है। और ये एक लेसन है जो आज हम सब मीडिया के लोगों को सीखना है। और जब हम लोगों की बात करते हैं, लोगों के मतलब के सवाल पूछते हैं, तो फिर उसका असर भी दिखाई देता है। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं कैसे आपकी अदालत में जब लोग आए, उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानियां बताई। तो ये मेरे लिए सिर्फ एक शो नहीं था, ये सिर्फ एक मीडिया एक्टिविटी नहीं थी कि आपने शो किया, आप बड़े बन गए, आपने पैसा बनाया, आपके पास ताकत आई। मुझे हमेशा इस बात की बहुत लालसा रही कि जो लोग आपकी अदालत में आए, उनसे मैं कुछ सीखूं, उनसे नया कुछ सीखने को मिले। और ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन है। कभी भी मैंने किसी भी होस्ट, किसी भी गेस्ट का अपमान नहीं किया, हर मेहमान से कुछ सीखा। और दो चार इंसिडेंट से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बहुत सारी घटनाएं हैं। शाहरुख खान जब आपकी अदालत में आए थे पहली बार, उस समय कोई बहुत बड़े स्टार नहीं थे, और आपकी अदालत को भी साल 1.5 साल हुआ था उस समय। एक इनकी फिल्म बाजीगर रिलीज हुई थी, लेकिन ये मुझे फ्लाइट में मिले और जिस तरह की उन्होंने बातें की, इतना इंटरेस्टिंग था। जब ये आपकी अदालत में आए तो बहुत 1-2 फिल्में इनकी रिलीज हुई थी, लेकिन एक नए आदमी से भी, एक यंगर आदमी से भी क्या कुछ सीखा जाए, उनके हाजिर जवाबी ने इतना इंप्रेस किया। और जिस तरह से उन्होंने सवालों को हैंडल किया, मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं ऑडियंस में से, और ही वाज वेरी यंग। ऑडियंस में से किसने उनसे पूछा कि शाहरुख साहब, आप फिल्म इंडस्ट्री में अभी आए हैं, ये बताइए नंबर 1 कौन है? तो उन्होंने कहा मैं हूं ना। तो मैंने कहा शाहरुख साहब, ये आज की फिल्म इंडस्ट्री में तो अमिताभ बच्चन नंबर, उस समय अमिताभ बच्चन बहुत बड़े स्टार थे, अमिताभ बच्चन नंबर 1 है। ही सेड वो कौन है? तो मैंने उनको कहा देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा है कि कैसे आपको एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। मैंने उनको पढ़ के मैंने उनको कहा देखिए, हमारे शास्त्रों में हमें बचपन से सिखाया गया, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वा धन माप्नोति धनाधर्मम ततः सुखम। ही सेड थैंक यू, सेम टू यू। इमीडिएटली उनके मुंह से जवाब निकला। मैं उनको ये बताता कि इसका मतलब क्या है, उससे पहले उन्होंने कहा, लेकिन वो एक बात सिखा गए, चाहे आप यंग हैं, हाजिर जवाबी और अपने ऊपर विश्वास। उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उनका जो आत्मविश्वास था, वो वाकई में काबिल तारीफ है, और आज भी। और इसी ने इतना बड़ा स्टार शाहरुख खान को बनाया। और वो 25 साल बाद जब फिर से आए बड़े स्टार बनने के बाद में आपकी अदालत में, तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी अदालत ने इतना बड़ा बनाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे मालूम नहीं कि उससे बड़े बने या नहीं बने, लेकिन आज भी वही विट, वही हाजिर जवाबी और वही आत्मविश्वास अपने ऊपर है। तो ये बहुत बड़ा लेसन है जिंदगी का। हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं, तो ये आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बहुत जरूरी है। बड़े बड़े लोग जब आपकी अदालत में आए तो कई बार मेरे लिए भी कोई आसान नहीं था ऐसे लोगों से सवाल पर। अटल बिहारी वाजपेयी, वो प्राइम मिनिस्टर थे, और उनकी मालूम नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं कि वो बोलने में बहुत ही माहिर थे।
उनकी हाजिर जवाबी और उनकी, लोग कहते थे उनकी जबान पर सरस्वती है, और बहुत सीनियर थे, बहुत बड़े लीडर थे, उनके लिए उनसे सवाल पूछना कोई आसान काम नहीं था। और प्रोग्राम तो जैसा हुआ उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए, मैंने भी कोशिश की, लेकिन जब प्रोग्राम खत्म हुआ उसके बाद मैंने उनसे कहा कि अटल जी, मैं आपसे बोलने की कला सीखना चाहता हूं, आप जैसे जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि आप मुझसे बोलने की कला मत सीखिए, अगर कुछ सीखना है तो ये सीखे कि चुप कहाँ रहना। ये जीवन का बहुत बड़ा लेसन, और इस लेसन ने, इस सबक ने मेरा जीवन बदल दिया। कहां पर क्या बोलना है वो तो आसान है, स्पीच देना है आसान है, लोगों से बात करने आसान है, लेकिन कहां चुप रहना है ये बहुत बड़ी मुश्किल काम है, और ये बड़े संयम की चीज है। हर आदमी से जो भी आया कुछ ना कुछ सीखने को मिला। प्रणब मुखर्जी जो बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, जब आए थे तो फाइनेंस मिनिस्टर थे देश के, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात सिखाई। उन्होंने कहा कि देखिए, जब आप पब्लिक लाइफ में हैं, जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं, तो फिर आपको बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, और बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। सबसे बड़ी चीज यह है कि सबको साथ लेकर चलना, और अपने, आपकी आलोचना करने वाले का, अपने क्रिटिसिज्म करने वाले का सम्मान करना, उसको भी रिस्पेक्ट देना। और ये बहुत बड़ी चीज है जो आज मैं अपनी मीडिया के साथियों से कहता हूं, हम जो सीखने की चीज है। हम टीवी चैनल के होस्ट हैं, हम प्रोग्राम करते हैं, लोग हमारे, हम उन्हें गेस्ट कहते हैं, लेकिन हम बुलाकर उन पर चिल्लाएं, हम बुलाकर उन लोगों का अपमान करें, ये मुझे लगता है ये सही रास्ता नहीं, और इससे व्यूअर का कोई भला नहीं होता। जो हमारा दर्शक है उसके मन में मेरे प्रति हमेशा, मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट रहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अपना समय देकर हमारी बात सुन रहा है, जो हम कह रहे हैं उस पर विचार कर रहा है, और हम जो कुछ हैं एज ए टीवी एंकर, एज ए होस्ट, एज ए प्रेजेंटर, हम जो कुछ हैं उन व्यूअर्स की वजह से, जो हमें देखते हैं, जो बनाते हैं। तो उनकी थिंकिंग, उनकी रिस्पेक्ट, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा हमारे शोज में जो लोग आते हैं उनकी रिस्पेक्ट करना और उनकी बात लोगों तक पहुंचे, इसकी कोशिश करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप सब लोग जानते हैं कि कैसे शो शुरू हुए हैं, जिसमें शोर है, जिसमें कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन मुझे लगता है ये एक टेम्परेरी फेज है, इट विल नॉट रियली लास्ट लॉन्ग। और जो मुझे अब 28 साल हो गए आपकी अदालत करते हुए, कभी भी एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया कि कोई व्यक्ति नाराज हो जाए या चैलेंज करे। और मैं आपको एक और राज की बात बताता हूं, जब भी आपकी अदालत में कोई गेस्ट आता है तो मैं उस गेस्ट से प्रोग्राम शुरू होने से पहले कहता हूं कि आप खुलकर बेबाकी से अपनी बात कहिए। ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड है, ये कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा, और रिकॉर्डिंग के बाद कोई ऐसी चीज हो जो आपको लगे कि आपके मुंह से गलती से निकल गई, कोई चीज जो आपको लगे कि आपने कह दिया लेकिन आप नहीं कहना चाहते, मैं उसको एडिट कर दूंगा और ये आपके मेरे बीच में बात रहेगी। आजकल ऐसा नहीं होता है, लोग डरते हैं शोज में आने से, उनको लगता है कि मुंह से कोई बात निकल गई, उसको बहुत बड़ा बना के ब्रेकिंग न्यूज बना करके टीवी चैनल पर चला दे, और फिर बाद में उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। 28 साल में सिर्फ 2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जब लोगों ने कहा कि हमने ये कहा था, ये आप इसको डिलीट कर दीजिए, और मैंने उसको डिलीट किया। एक तो ऐसा इंसिडेंट था जिसको लेकर के मेरी जो एडिटोरियल टीम थी उससे बहुत लड़ाई हुई। वो सब लोग कहते थे इन्होंने इतनी बड़ी बात कही है और आपने उसको डिलीट कर दिया, इससे शो कमजोर हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, ये मेरा कमिटमेंट है, मेरा वर्ड है, और ये हमेशा मैंने किया।
इसलिए लोग आए, खुलकर बात की। सलमान खान जब आए तो वो बिल्कुल हॉस्टाइल थे, क्योंकि वो उनका तरीका ये है कि वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, किसी को सीधा जवाब नहीं देते। लेकिन पहली बार उन्होंने अपने लाइफ के बारे में, अपने जो केसेस थे उसके बारे में, जो ब्लैक बक का केस था उसके बारे में पहली बार खुलकर बात की, वरना कभी किसी को जवाब नहीं देते थे। जो रोड पर एक्सीडेंट हुआ था रात में, उसके बारे में बात की। और फिर जब मुझे लगा कि खुलकर बात कर रहे हैं, तो फिर मैंने ऐश्वर्या के बारे में भी पूछ लिया, वो भी उन्होंने बात दी। फिर मैंने कटरीना के बारे में पूछ लिया, वो भी बोले। और बाद में उन्होंने मुझे कहा कि ये सर आपने कैसे कर दिया, मेरे मुंह से इतनी बात निकलवा ली। मुझे लगता है आप सामने वाले को रेस्पेक्ट देंगे, उसकी बात सुनेंगे, उसको अपनी बात कहने का मौका देंगे, तो शायद वो कहेगा अपनी बात। जैसा मैं कह रहा था कि सीखने को बहुत मिला है। नरेंद्र मोदी जब आपकी अदालत में आए तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आप सपने देखो, लेकिन कुछ बनने का सपना मत देखो। अगर कोई सपना देखना है तो कुछ करने का सपना देखो। और ये बात हम सबके लिए बड़ी सीखने की बात है। हम सब सपना देखते हैं कि हम ये बन जाएं, वो बन जाएं, लेकिन अगर करने का सपना देखें तो मुझे लगता है कि जिंदगी बहुत बेहतर होगी, बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। और सपने भी मैं हमेशा मानता हूं कि दो तरह के सपने होते हैं। एक तो वो सपने होते हैं जो हम रात में देखते हैं जब हम सो रहे होते हैं आराम से, और दूसरे वो सपने होते हैं जो हम दिन में देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मेरी रात को नींद नहीं आती। मैंने हमेशा वो सपने देखे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए मुझे रात में नींद नहीं आई। इंडिया टीवी शुरू हुआ, न्यूज शुरू की, करीब 16 साल हुए इंडिया टीवी को शुरू किए हुए। कोई बैकग्राउंड नहीं थी, कोई कैपिटल नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, कोई ताकत नहीं थी, पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि जो लोगों का सपोर्ट मिला, क्योंकि मैंने लोगों की चिंता की, लोगों की परवाह की, उसका सपोर्ट मिला तो इस मुकाम तक पहुंच गया। मैं हमेशा अपने मन में ये सोचता हूं कि आप कुछ भी बन जाएं, कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन अपनी विनम्रता नहीं जानी चाहिए। और यही सोचना चाहिए कि हमारा जो मिजाज है वो फकीरी का मिजाज है। एक शायर ने कहा कि जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं। जिनको कल की फिक्र नहीं होती वो मुट्ठी में आज रखते हैं। इस आज को, आज जो मौका मिला है, इसको हमें अपने हाथ में रखना है। आज को आप मुट्ठी में रखें। आज हो सकता है बहुत सारी मुश्किलें लगे आज बड़ा डिफिकल्ट टाइम है, इट्स रियली नॉट वर्किंग आउट। कल शायद उससे भी और मुश्किल काम हो, उससे भी मुश्किल दिन हो। लेकिन मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जब परसों आएगा, जब तीसरा चौथा दिन आएगा, तो नया सूरज खिलेगा और नई रोशनी की सुबह आपका इंतजार करेगी। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप जीवन में जहां जाएं, बड़े बने, बड़े बड़े सपने देखें, उन सपनों को पूरा करें। और मैंने वादा किया था कि बहुत सारे अगर सवाल लोगों के मन में होंगे तो उसको मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मेरी तरफ से तो आपको बिल्कुल पूरी फ्रीडम है। आप कुछ भी अच्छे सवाल, कड़वे सवाल, मीठे सवाल पूछ सकते हैं। मेरा जीवन खुली किताब है। आप जस्ट फील फ्री टू आस्क एनीथिंग दैट यू वांट। थैंक यू रजत सर। आपका लाइफ स्टोरी इंडीड काफ़ी इंस्पिरेशनल है, और तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने जो कहा, जो आपका फर्श से अर्श वाला जो आपका जो जर्नी था, जो आपके चाइल्डहुड काफ़ी हम्बल बिगिनिंग से थी, काफ़ी मेरे को रिमाइंड किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के स्टोरी के बारे में, स्पेशली जो आप रेलवे स्टेशन में लाइट के अंदर आप पढ़ाई करते थे। तो आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ने आपका वर्ल्ड व्यू कैसे शेप किया है, और वो इन द वे यू डील विथ न्यूज़, हाउ डज वो कैसे अफेक्ट करता है? देखिए, चाइल्डहुड में तो कभी सोचा नहीं था कि न्यूज करेंगे या टीवी पर जाएंगे। एक घटना ऐसी हो गई, हमारे घर में बिजली नहीं थी तो टीवी भी नहीं था। तो उस जमाने में आप लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा, उस जमाने में सिर्फ एक दूरदर्शन होता था और उस पर फिल्में आती थी।
आधी फिल्म सैटरडे को दिखाते थे, बची हुई फिल्म संडे को दिखाते थे। तो हमारे पड़ोस में एक घर में टीवी था, उस घर में हम जाते थे देखने। तो सैटरडे को मैं गया, संडे को जब गया तो उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, बहुत खटखटाया, दरवाजा नहीं खोला। अब मैं घर वापस आया दुखी होके, आंख में आंसू थे। बाबूजी ने पूछा क्यों क्यों रो रहे हो? तो मैंने कहा कि मैंने वो शहीद भगत सिंह की फिल्म थी, आधी देखी थी और दूसरी देखने गए थे और उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। तो उन्होंने कहा तुम किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को देखने जाते हो, अगर दम है तो कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ और लोग तुम्हें देखें। अब ये बात कहीं जहन में रह गई थी। तो कोई पर्सपेक्टिव नहीं था, कोई सपना नहीं था, कोई अंदाजा नहीं था, कोई मीडिया से कोई संबंध नहीं था। लेकिन आज इस मुकाम पर आकर मुझे लगता है कि मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सच्चाई को लोगों के सामने रखना। क्योंकि हमारे चारों तरफ स्पेशली सोशल मीडिया की वजह से इतना कुछ इंफॉर्मेशन हो रही शुरुआत के दिनों में ये नहीं था। जब ने आपके अदालत शुरू किया था या एनडीटीवी टीवी शुरू किया था तब नहीं था। लेकिन पिछले 10 साल में और खासतौर से पिछले 5 साल में flow of information is coming to the younger generation from all sides, and we wonder whether this is right or this is wrong. Every day I get messages, people ask me, sir, this is the video, please can you check whether this is right or wrong. Some video which relates to Bangladesh, it is shown to as India's visual. Something which relates to Uzbekistan is shown as India's visual, and we really feel bad. So मुझे लगता है आज हमारे यहाँ जो global challenge है, not only for India, for anywhere in the world, the biggest challenge today we have is to give viewer the accuracy of news, to be able to tell them to sift between what is right, what is wrong, what is viral, and what is actually truthful. This is probably is the biggest challenge. Right. So, I mean, coming to that, तो आजकल लाइक स्पेशली क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ का ज़माना है, सबको हेडलाइन सबसे पहले ब्रेक करना होता है, तो मे बी दैट कुड बी पार्ट ऑफ द रीजन के ऑफन बिग न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस माइट फॉल प्रे टू पुटिंग आउट अ वीडियो जो बाद में पता चलता है फेक न्यूज़ है। एंड फिर अभी ऐसा हो गया कि अभी ट्विटर पे कुछ हैंडल्स है, वो लोग सब फैक्ट चेकर बन गए। तो मेन स्ट्रीम मीडिया को क्या करना चाहिए टू इनकॉर्पोरेट मोर फैक्ट चेकिंग इनटू देयर नॉर्मल प्रोसेस? देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया में दो हैं, एक तो न्यूज़पेपर है। Right. न्यूज़पेपर के लिए इतनी मुश्किल नहीं है क्योंकि न्यूज़पेपर हैज अ लॉट ऑफ टाइम। वहां कोई स्टोरी आती है, उसको एक असिस्टेंट एडिटर देखता है, फिर एडिटर देखता है कि हेडलाइन लगती है और अगले दिन अखबार में छपती है। दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू गो थ्रू एंड देयर आर, आई हैव वर्कड इन प्रिंट मीडिया सो आई नो देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस। टीवी में रिफ्लेक्शन टाइम बहुत कम। यू गेट सम वीडियो एंड यू वांट टू पुट इट ऑन एयर, बिकॉज इफ यू डोंट पुट इट ऑन एयर योर राइवल विल पुट इट and you will be lagging behind. मैं आपको एक, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि हम सबको अपनी जजमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, एडिटोरियल जजमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जब ये हमारे अभिनंदन को पाकिस्तानी फौज ने पकड़ लिया था, उस समय उन्होंने शुरू में वहां जो पब्लिक थी उसने उनको मारा पीटा, तो वीडियोस आए सामने जिसमें उनके मुंह से खून निकल रहा है, पब्लिक उनको मार रही है। अब ये बड़ा डायलेमा हमारे सामने था कि हम इसको दिखाएं कि नहीं दिखाएं। दिखाएं तो लगता है कि हमारी जो फौज है एक डिमोरलाइजेशन की, तो तब तक ये नहीं पता था वो छूट जाएगी, बाद में तो ठीक हो गया। लेकिन मैंने ये फैसला लिया अब नहीं दिखाएं। और लेकिन वो सोशल मीडिया पर वो चीजें वायरल होने लगी, बहुत सारे सवाल उठे, भाई जब ये सच्ची सिचुएशन है आप क्यों नहीं दिखाते। तो मुझे लगता है कि सच दिखाना चाहिए, लेकिन सच के साथ साथ हमारा जो देश के प्रति, हमारा जो लोगों के प्रति एक जज्बा है उसको नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, ये टीवी के लिए बड़ा चैलेंज है। हम जब भी कोई न्यूज दिखाएं उसको एक बार चेक कर लें। आप दूसरे अपने राइवल से 5 मिनट लेट हो जाए तो कोई बात नहीं। दिस इज माई इंस्ट्रक्शन टू इंडिया टीवी एडिटोरियल टीम। आप 2 मिनट देर हो जाए मैं आपको कभी ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन आप गलत खबर अगर आप चलाएंगे तो मैं आपको ब्लेम करूंगा। और दूसरी बात मैं कहता हूं, मान लीजिए कि आपसे कोई गलत खबर चल गई, मान लीजिए कोई चीज आपने दिखा दिया, तो इमीडिएटली माफी मांग लीजिए तुरंत। उसमें ये प्रेस्टीज पर, ईगो पर बैठने की जरूरत नहीं, अरे हमने दिखा दिया अब देखा जाएगा, कोई हमारा क्या बिगाड़ेगा। दैट्स नॉट फेयर, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर अकाउंटेबल टू द व्यू।
So this probably something that we need to. Right. तो आपने इस चीज की काफी सो फैक्ट चेकिंग के रिस्पेक्ट में सेंट्रल इशू ये है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, राइट। और आज के तारीख में लाइक पीपल सोशल मीडिया पे भी न्यूज में पीपल ओवर ऑब्सेस लगते हैं कि पॉलिटिक्स डिस्कस करना है, पार्टीज डिस्कस करना, पॉलिटिशियन डिस्कस करना है। तो अकॉर्डिंगली मीडिया भी उसके हिसाब से पार्टीजन हो गई है। कोई चैनल्स एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कोई चैनल दूसरे पार्टी को सपोर्ट करते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट इन इंडिया, राइट, लाइक अक्रॉस द वर्ल्ड ये है। लाइक आई थिंक बैक इन 2015 बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहा था कि पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट व्हाट इज अ फैक्ट, अबाउट डिफरेंट फैक्ट्स, बट आज प्रॉब्लम ये है कि लोग ये सोचने लगे कि फैक्ट क्या है, उसी पे लोगों को क्वेश्चन है, राइट। और हमें ये इंडिया में भी दिखता है, चाहे वो गलवान वाला इशू हो या पुलवामा और बालाकोट वाला इशू हो या पॉलिसी इंप्लीकेशंस ऑफ सीएए, फार्म बिल्स या कुछ भी जो भी रिसेंटली चल रहा है, कि इसमें एक्चुअली लाइक रियलिटी क्या है या व्हाट इज द फैक्ट, उस पे लोग अलाइन नहीं करते हैं, राइट। तो इस पे लाइक ये जो सिचुएशन है, इसमें आपको क्या लगता है कि मॉडर्न मीडिया का क्या रोल है एंड व्हाट कैन लाइक मॉडर्न मीडिया हाउसेस डू के जिससे लोगों को ज्यादा ट्रस्ट आए कि अच्छा चलो ये इशू है, ओपिनियन हम खुद का बना लेंगे, बट इशू पे एटलीस्ट कम से कम कंसेंसस हो। दो एस्पेक्ट है इसके। एक एस्पेक्ट तो है जैसे आपने कहा गलवान का एग्जांपल दिया, देखिए ये वो एरियाज हैं जहां पर मीडिया को कोई एक्सेस नहीं। हम सैटेलाइट पिक्चर्स के बेसिस पे कोई फैसला ले दें, और इसमें हमको बाय लार्ज ऐसे इश्यूज में अपनी सरकार पर, अपनी फौज पर भरोसा करना चाहिए। जो वो कहें उसका विश्वास करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हम अपनी आर्मी को, हम अपनी नेवी को, हम अपनी एयरफोर्स को वो जो कह रहे हैं उस पर विश्वास करें। क्यों? अगर कोई इंफॉर्मेशन कोई फ्रंटलाइन पर है तो वही है, और गवर्नमेंट को कोई बता रहा है तो वही है। इस तरह से अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजें वेरी करती हैं, अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके होते हैं किसी को चेक करने के। अब हाथरस की घटना हुई, क्या बलात्कार हुआ, नहीं हुआ, दिस इज समथिंग द रिपोर्टर्स कैन गो एंड असेस, गो एंड टॉक टू पीपल, सी द विक्टिम्स, एंड और लगे कि अगर पुलिस इसमें लेग्जिटी कर रही है तो फिर दे गो ऑल द वे। अब इसके दो हिस्से होते हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं कि मीडिया ट्रायल, किसी को साबुत हो, सब कोई किसी को सबूत मिले नहीं मिले, कोर्ट का फैसला है, आप कौन होते हैं ये कहने वाले। लेकिन बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं। एक एग्जांपल जैसे हम सब जानते हैं जेसिका लाल मर्डर केस का है। अगर मीडिया प्रोएक्टिव रोल नहीं प्ले करता तो जो एक्यूज्ड है वो तो छूट गए थे, उनको तो कोर्ट ने छोड़ दिया था क्योंकि कोई गवाह खड़ा नहीं हो पाया। ये तो मीडिया ने शोर मचाया, फिर वो केस रीओपन हुआ, फिर वो गवाह सामने आए और द एक्यूज हैड टू गो टू जेल, लाइफ इंप्रिजनमेंट हुआ। तो अलग अलग केसेस में अलग, अब ये जितने आप मुझे कोई स्पेसिफिक केस पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा कि इस केस में ऐसा हुआ, बट बाय एंड लार्ज मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि फैक्ट्स चेक करें, जहां जरूरत पड़े उसके लिए लड़े। और जो आपने कहा पॉलिटिकल पार्टीज का, ये हमारे यहाँ रिसेंट फिनोमिना है कि कुछ लोग एक पार्टीजन लाइन लेते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर बन जाते हैं और उसकी जो लाइन है उसको टो करते हैं। अब इसको रोका नहीं जा सकता, आप किसी को नहीं रोक सकते कि आप कौन सी लो करें। ये कर सकते हैं कि जो अब तीन तरह के मीडिया हो जाएंगे, एक जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, एक मीडिया जो गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे, उसकी मुखालफत कर रहे हैं, और तीसरा है जो सेंट्रल लाइन ले रहे हैं, जो दोनों पक्ष दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है क्रेडिबिलिटी उसकी होती है जो बीच की लाइन लेता है। हमारे देश में जो लाइन लेते हैं उनकी ज्यादा टेम्परेरीली वो दिखता है कि बहुत शोर मचाए, बहुत इनकी नाम हो गया, इनको लोग देख रहे हैं, बट दे डोंट लास्ट लॉन्ग। मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है मीडिया में। उस एक्सपीरियंस के जरिए मैं कह सकता हूं कि जिसने भी एक लाइन टोकी या एक बायस रोल प्ले किया, दे डोंट लास्ट वेरी राइट। और एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसमें ये जो नया मीडिया है और नई चीज है, इसमें आप लोगों का बहुत रोल है। अगर आपके जैसे इंजीनियर्स, आपके जैसे टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हमें मिल जाएं, वो डिसाइफर करने में बहुत मदद कर सकते हैं। और आजकल हम आपके जैसे लोगों की मदद लेते हैं, राइट, जो आईआईटी के ट्रेंड लोग हैं। सी दे नो दी टेक्निक, दे नो दी टेक्नोलॉजी, जिनको हम आईटी के लोग कहते हैं। उनकी चाहे एडिटोरियल सेंस हो या ना हो, बट दे कैन ऑलवेज गिव यू द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड चेक यू कि कहाँ का वीडियो है, कैसा वीडियो है, किसने अपलोड किया, कब अपलोड किया। So thank you very much for this technological advancement and all of you. It helps.
राइट। तो उससे थोड़ा, तो एक क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क स्पेसिफिकली, लाइक अभी ये कोविड पैंडेमिक के टाइम पे मीडिया ने काफी शानदार जॉब किया, लाइक इट वाज अ रिस्की एनवायरनमेंट, और लोगों ने फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह ये भी एकदम हीट ऑफ द पूरे इशू में घुस गए, एंड डेली का अपडेट्स दे रहे हैं कि क्या क्या पॉलिसी चेंज हो रहा है, कहाँ पे लॉकडाउन हो रहा है, कहाँ पे कर्फ्यू हो रहा है, व्हाट्स द लेटेस्ट नंबर, हॉस्पिटल्स का क्या सीन है, वैक्सीन का क्या सीन है। सो काफी फिनोमिनल जॉब किया, एंड आई एम श्योर कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ने, बाकी सब ने, वहाँ पे जर्नलिस्ट ने काफी स्ट्रगल फेस किया होगा। But like after 1 year of this, more than a year of ये COVID, अभी भी discussions are more around the जो numbers जो थोड़ा scary sound करते हैं, but we don't talk about like the scientific details of it. Like आज तक कोई mainstream discussion इस चीज पे नहीं सुना है कि केस फेटालिटी रेट और इन्फेक्शन फेटालिटी रेट में क्या फर्क है, या mRNA वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या फर्क है, या कोई स्टैटिस्टिकल इम्पैक्ट रहा है आफ्टर 1 year के लॉकडाउन करे या नाइट कर्फ्यू करे तो उसका कुछ फर्क पड़ता है केसेस पे, या कुछ कोरिलेशन है या नहीं। तो एक जो साइंटिफिक एंड टेक्निकल टेम्पर जो चाहिए ये साइंटिफिक इश्यूज के साथ डील करने को, वो डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा लाइक मॉडर्न मीडिया में, स्पेशली क्योंकि लाइक फ्यूचर के प्रॉब्लम्स वही है, क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट ऑफ एआई, सुपर बग्स, ये सब सुपर बग्स तो अभी दिख ही रहा है कोविड के साथ। तो व्हाट डू यू फील के मीडिया कर सकती है टू इंक्रीज ए साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग अमंगस्ट इटसेल्फ, एंड आल्सो वो चीज को कैसे सिंप्लीफाई करके वाइडर ऑडियंस को बताए? देखिए, मीडिया के सामने प्रॉब्लम क्या होती है, मीडिया हैज टू डील विद इश्यूज एट टाइम्स वेयर इट डज नॉट हैव द एक्सपर्टीज। राइट। टू डील विद कोरोना वी हैड नो एक्सपर्टीज, वी हैड नो आइडिया अबाउट वायरस। हम तो फिर पढ़ने लगे भाई 1928 में वायरस आया था तब क्या हुआ था, लेकिन आज की साइंस, आज की थिंकिंग, बट वी आर वेरी क्विक एट दिस। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे जो एडिटर्स हैं, दे ऑलवेज गो टू द साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स, स्पेंड आवर्स विद देम, अंडरस्टैंड इट, लेकिन उसका जो लिमिटेड पार्ट जो जनता के समझ में आ जाए वो रिवील करते हैं। क्योंकि जैसे आपने जो साइंस की बात कही, हमारे लोग शायद जानते भी होंगे, लेकिन वो अगर हम टीवी पर कहेंगे, उसमें डॉक्टर्स की इंटरेस्ट हो सकता है, उसमें जो साइंटिस्ट हैं उनका इंटरेस्ट हो सकता है, कि आम व्यूअर है उसको उतना नहीं। आम व्यूअर तो ये जानना चाहता है कि देखिए साहब ये बताइए ये कब इससे पीछा छूटेगा। वो आम व्यूअर तो ये जानना चाहता है कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो मैं बचूं कैसे, और मुझे क्यों हो गया, क्या सिम्टम्स है। शुरू के दिनों में तो यही बताना पड़ा। उसके बाद इससे बचें कैसे, अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ा। और अब ये जो सेकंड वेव है, अब लोग जानना चाहते हैं अगर मैंने वैक्सीनेशन लिया तो क्या मैं बच जाऊंगा। फिर कहते हैं 2 वैक्सीनेशन जिन्होंने ले लिया उनको भी कोरोना हो गया तो इसका क्या फायदा। इन चीजों पर उनको समझाना पड़ता है। और इसके लिए आप, जैसे आज ही हमने इंडिया टीवी पर पूरा दिन वी डिड अ कोरोना हेल्थ कॉन्क्लेव। तो वी हैड 2 sets of people, one the chief minister of various states. So we had Gujarat chief minister and we had Maharashtra health minister and Delhi chief minister. All these people, they were saying पब्लिक को कैसे अवेयर करना है, क्या समझाना है, क्यों वैक्सीन अब कम पड़ रही है, अगर कम पड़ेगी तो क्या करेंगे, हॉस्पिटल्स, आईसीयूज, द मेडिसिन्स व्हिच आर बीइंग ब्लैक मार्केट, क्या उनके लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वी हैड सेट ऑफ डॉक्टर्स, Dr. Guleria, and he really explained it very well. Even for a person like me, what Dr. Guleria explained, क्यों, अब देखिए एक सवाल सबके सामने है, मैं एक ही एग्जांपल लेता हूँ कि भाई हम क्यों नहीं खोल देते, क्यों नहीं 18 साल से उम्र के लोगों को भी हम वैक्सीन लगा देते। आफ्टर ऑल अब जो नए केसेस आ रहे हैं उसमें यंगस्टर्स आर गेटिंग अफेक्टेड। ही सेड हमारे यहाँ अगर हम लगाने लगेंगे तो 97 करोड़ है, 1 बिलियन, 100 करोड़ हमको लोगों को वैक्सीन देनी होगी, और 2 बार देनी है तो 200 करोड़ वैक्सीन डोजेस हमें चाहिए। अगर दुनिया में जितनी वैक्सीन बन रही है वो सारी की सारी भी हम खरीद लें तो भी हम 200 करोड़ नहीं इकट्ठा कर सकते। तो इट विल बी क्योस। तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि सबको क्यों नहीं दे देते, बट व्हेन यू रियली गो इनटू द साइंस ऑफ इट, व्हाट यू वर सेइंग, देन वी रियलाइज नो, दिस इज नॉट द वे, देयर आर फेजेस, whole world is doing in phases, we also have to do this in phases. दूसरा, लोग कहने लगे हम घर पे जाके लगा देंगे वैक्सीन। अब घर पे जाके आप वैक्सीन नहीं लगा सकते। ये एक्सप्लेन कि जब आप किसी को वैक्सीनेट करते हैं तो यू नीड टू ऑब्जर्व दैट पर्सन, इट्स अ होल प्रोसेस, होल साइंस which a common man does not understand.
So I agree with you that the scientific temperament should come in the reporting, in explaining this to the people. But we try and leave it to the experts, try and ask them questions, and वो common man की भाषा में वो लोग को बता दें, वो कोशिश रहती है. हाँ, like definitely like काफी सारे टीवी चैनल्स वो एक्सपर्ट्स को ले आते हैं, बट जो proportion of coverage है, like probably 90% of the day would be more towards कि अच्छा आज इतने केसेस आ गए, आज इतने डेथ्स हो गए, versus maybe once in a week या once in 2 weeks शायद ऐसा कुछ एक सीरियस डिस्कशन होगा जो maybe actually जनरल ऑडियंस को थोड़ा सा नॉलेज इम्पार्ट करे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो आप भी कह रहे थे कि नॉलेज इज पावर इस चीज में, जितना आप बेटर समझेंगे उतना आप बेटर डील कर सकते हैं वो चीज के साथ. तो इज इट लाइक, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि देयर इज डेफिनेटली एक बिजनेस और आइडियलिज्म के बीच में आपको बैलेंस भी करना है. तो like for media companies, how do you strike that balance between what the audience wants to hear, what you think that the audience wants to hear, versus what you think that the audience should hear, right? जो हाँ, देखिए, एक जनरल इंप्रेशन है कि मीडिया जो कुछ करता है वो टीआरपी के लिए करता है. अब आप उसको मुझे थोड़े से पोलाइटली पूछ रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि आपके सबके मन में सवाल है, भाई जो भी खबर दिखाते हैं आप तो रेटिंग के लिए दिखाते हैं, रेटिंग से आपको रेवेन्यू मिलता है, आप पैसा कमाने के लिए करते हैं. ये इंप्रेशन है, लेकिन ये गलत है. मैं आपको कह सकता हूं कि बाय एंड लार्ज जो लोग न्यूज रूम से, एक दो चैनल्स आप छोड़ दीजिए, बट बाय एंड लार्ज जो बड़े न्यूज चैनल्स हैं उनमें जो लोग काम करते हैं वो भी हमारी और आपकी तरह है. उन सबके घर हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, वो भी समाज में रहते हैं, और जो समाज की जो फीलिंग्स हैं वो उनको रिफ्लेक्ट करते हैं. नोबडी डज इट फॉर रेटिंग्स. रेटिंग्स के लिए जो करते हैं वो माइनर चीज, कोई कभी किसने कोई शो कर दिया जिस पर उसको रेटिंग मिली तो उस शो को 2 बार दिखा दिया, 4 बार दिखा दिया. बट बाय एंड लार्ज व्हेन इट कम्स टू पब्लिक वेलफेयर, व्हेन इट कम्स टू थिंग्स रिलेटेड टू पब्लिक, से कोरोना फॉर एग्जाम्पल, और अभिनंदन केस फॉर एग्जाम्पल, और say farmers agitation for example, these are the things which concern public life, which concern common people. इनमें कभी भी रेटिंग का ख्याल नहीं. इनके बारे में जब दिखाते हैं तो ये परवाह नहीं करते कि वो रेटिंग आ रही है या नहीं आ रही है. मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं. 26/11 जब हुआ था, 2 दिन तक वो टेररिस्ट हमारे लोगों को ताज में और ओबरॉय में घेर के बैठे रहे, गोलियां चलती रही. For 48 hours, news channels were showing that. No one bothered कि रेटिंग इसलिए बॉदर होती है कि आपको एड मिलेगा. There was not a single ad play, non-stop, और it's a definitely terrible revenue loss. तो अगर रेवेन्यू के लिए इतना कर रहे होते तो शायद ऐसे टाइम, या भी पार्लियामेंट में अगर कुछ चल रहा है, समथिंग व्हिच इज हीटेड डिस्कशन, प्राइम मिनिस्टर रिप्लाइंग टू द ऑपोजिशंस और ऑपोजिशन लीडर स्पीकिंग, आप देखेंगे नॉन स्टॉप चलता है, नोबडी टेक्स अ ब्रेक. सो द कंसर्न फॉर रेवेन्यू इज सेकेंडरी. अगर रेवेन्यू के आप नहीं चैनल चला सकते, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव मीडियम, वेरी एक्सपेंसिव मीडियम. आई ओन अ चैनल, आई रन अ चैनल, आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज. तो रेवेन्यू का कंसिडरेशन है, बट रेवेन्यू कंसिडरेशन पब्लिक वेलफेयर को ओवरराइड कभी भी नहीं करता. और हमारे न्यूज रूम्स इतने सेंसिटिव हैं, अगर कोई खबर चल रही है, किसी आदमी ने फोन कर दिया कि साहब ये आप क्या खबर चल रहा है, ये गलत से सही है, दे इमीडिएटली गेट डाउन टू दिस, नहीं जरा इसको चेक करो. तो पब्लिक रेस्पेक्ट, पब्लिक वेलफेयर एंड व्यूअर्स कंसर्न इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. रेटिंग्स एंड रेवेन्यू दे कम नेक्स्ट. Right. और मैं अपने इंडिया टीवी में तो मेरा मंत्र एक ही है, हमारे सारे एडिटोरियल टीम को मैं कहता हूं, मुझे रेटिंग भी चाहिए, मुझे रेवेन्यू भी चाहिए, लेकिन उससे पहले रेस्पेक्ट चाहिए. Right. 3 R's. So our respect is first, rating and revenue are second, and that's my belief. Right. तो थोड़ा सा let's move to the topic of the discussion, which is role of media on evolution of democracy. तो अभी तो
लाइक लास्ट 10 साल से सोशल मीडिया का जनरेशन है, वो ज़्यादा ज़्यादा और ज़्यादा परवेसिव हो रहा है। अभी तो बच्चे ग्रो अप ही कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। एंड तो एक एक आपको एवोल्यूशन दिखेगा मीडिया में, जहाँ 30-40 साल पहले आपका न्यूज़ चैनल जो बेसिकली दूरदर्शन था वो गवर्नमेंट बैक्ड सिंगल सोर्स ऑफ न्यूज़ था। उसके बाद लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट कंपनीज चालू हो गई, तो काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, बट लिमिटेड नंबर ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स आए। फिर आपका सोशल मीडिया आता है, जिसने बेसिकली फिर तो ओपन सोर्स कर दिया। जिसके हाथ में भी कीबोर्ड है या कैमरा है, विच इज एवरीवन हु हैज अ मोबाइल फोन, वो अपने हिसाब से कुछ लोकल रिपोर्टिंग या ओपिनियन डाल सकता है। तो सडनली नाउ द माइक हैज बीन पास टू लाइक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल, इंडिया के केस में बिलियंस ऑफ पीपल। तो ये वाले चीज में आपको क्या लगता है कि इज दिस लाइक अ कंपटीशन और एन अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेस, एंड इन द लॉन्ग टर्म ये भी है कि बिकॉज ऑफ बहुत सारे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अनोनिमस है, तो कोई कुछ भी बोल सकते हैं जो शायद वो रियल लाइफ में ना बोले, तो वो काफी सारा मे बी डिस्कशन को खराब कर देता है, मे बी पब्लिक डिस्कोर्स को। तो इसका लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होगा? लाइक वुड इट मेक सेंस फॉर गवर्नमेंट्स टू क्लैम्प डाउन ऑन दैट फ्रीडम, जैसे चाइना ने किया है, ताकि क्योंकि ये टेंडिंग टुवर्ड्स एनार्की है, तो उस चीज को क्लैम्प डाउन करेगा, ऐसा आपको लगता है क्या? काफी दो डाइवर्स क्वेश्चन है, सॉरी। इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट तो ये है कि आज हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर कोई आदमी इंफॉर्मेशन देना चाहता है, हर कोई अपना यूट्यूब चैनल चला लेता है। इसका फायदा तो ये है कि लोगों को अपनी भड़ास निकालने का मौका मिलता है। अब लोग अंदर घुट के नहीं रहे, मुझे अपनी बात कहनी है, मेरे पास मीडिया में मैंने कह दिया, सच झूठ गलत सही वो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने तो जिसको गाली देनी थी दे दी। और सोशल मीडिया आप देखेंगे ज्यादातर गालियां देने वाली चीज ही ज्यादा चलती है। ज्यादा जितनी नेगेटिविटी होती है, जो जितना नेगेटिव होता है उतना ज्यादा उसको व्यूज मिलते हैं। तो ये एक, और दूसरा हमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको पब्लिक लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, डाइवर्स ओपिनियंस क्या है, वो देखने को समझने को मिलता है। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है, मीडिया की ताकत तब होती है जब उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। कोई मीडिया दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता अनलेस पीपल ट्रस्ट इन व्हाट यू आर सेइंग। इफ देयर इज ट्रस्ट डेफिसिट देन यू आर नथिंग। राइट। So the difference between the mainstream media and the social media is the social media has no credibility and mainstream media has credibility. People go to mainstream media to check, this is what I saw on WhatsApp, this is what I saw on Facebook, ये ठीक है या नहीं है, ये आप बताइए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। लॉट ऑफ चैनल्स की मदद से हम भी लोग करते हैं, एक शो करते हैं वायरल चेक, ये वायरल हो रहा है, ये इसका सच है, ये वायरल हो रहा है, इसका सच है। तो क्रेडिबिलिटी गिव्स यू स्ट्रेंथ। तो मेन स्ट्रीम मीडिया की स्ट्रेंथ सिर्फ इसी चीज में, क्रेडिबिलिटी में। और मैं बार बार कहता हूं कि हमारी पूरी ताकत इस बात पर होनी चाहिए कि हमारी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, हमारा ट्रस्ट बना रहे। राइट। बिल्कुल। तो डेमोक्रेसी के डिस्कशन पे आई वाज वेरी सरप्राइज टू नो कि आप बैक इन योर कॉलेज डेज आप डीयू में एसआरसीसी में स्टूडेंट लीडर भी थे, and because I honestly didn't think that, I thought you were younger than that तो मेरे को लगा नहीं कि emergency times आपने college time पे face किए होंगे, and उस टाइम पे you had even been put in jail। तो आपने देखा कि इमरजेंसी में those that जिनको हमने ही डेमोक्रेटिकली सिलेक्ट किया हमें रूल करने को, उन लोगों ने ही डेमोक्रेसी को सबवर्ट कर दिया, राइट। और ये हमने हमारे लास्ट 30-40 ईयर्स में ही देखा है ये। एंड आपने तो फ्रंट लाइंस पे वो देखा है, यू हैव बीन टू जेल आल्सो उस चीज के लिए। तो आपको कितना होप है कि द करंट इंडियन सोसाइटी, क्या लगता है कि कभी फ्यूचर में ऐसा सिचुएशन वापस आ पाएगा इमरजेंसी जैसा, या आर वी बेटर देन दैट नाउ? जब 1974 में, आपको मेरी एज का अंदाजा लग जाएगा, उसमें फर्स्ट ईयर जब कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो उस समय पूरे देश में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चल रहा था, जेपी मूवमेंट जिसको कहते थे। और वो किस लिए था? वो उस समय की प्राइम मिनिस्टर की डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज को लेकर था। और फिर उन्होंने इमरजेंसी लगा दी 75 में 19 महीने, तो 10-11 महीने में जेल में रहा। और कोई उम्र नहीं थी, कोई 18 साल की उम्र में, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस था
उसने एक चीज फर्म बिलीफ मेरी है, और वो ये है कि जब इलेक्शन हुए 1977 में, तो एक सरकार जो बरसों से जो पार्टी रूल कर रही थी, उसको उखाड़ के फेंक दिया लोगों ने, और जनता पार्टी की सरकार आ गई, मिलीजुली सरकार थी। उसको ना कोई उनके पास पैसा था इलेक्शन लड़ने के लिए, ना कोई सिंबल था, ना कोई लीडर्स के अंदर कोहेसिवनेस थी। लेकिन जो पब्लिक थी उस समय, वो उनको वापस लाना चाहती, इंदिरा गांधी को हटाना चाहती थी। किस लिए? उन्होंने लोगों को जेल में डाला, उन्होंने अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी, उन्होंने लोगों को, किसी भी विरोध करने वाले को पकड़ के जेल में डाल दिया, लोगों को टॉर्चर किया, नसबंदी की लोगों की जबरदस्ती अपने रिकॉर्ड बनाने के लिए। ये सारी चीजों ने लोगों के दिमाग पर इंपैक्ट डाला। जब हम जेल में थे तो ये उम्मीद नहीं थी कि हम कभी बाहर निकलेंगे। उस समय जो सीनियर लोग थे, जो बड़े बड़े लीडर थे, हम जिस वार्ड में थे, हमारे बराबर के वार्ड में प्रकाश सिंह बादल थे, चौधरी चरण सिंह थे, राजनारायण थे, ये सब लोग। और ये लोग ऐसी कहानियां सुनाते थे, अरे भाई हम सबको एक शिप में बिठा के और हमको समुद्र में डुबो दिया जाए। कोई कहता था नहीं नहीं, रशिया से इंदिरा गांधी की डील हो गई, हम सबको प्लेन में बिठा के ले जाएंगे और साइबेरिया के रेगिस्तान में छोड़ देंगे मरने के लिए। लेकिन जब बाहर निकले तो इस बात का अंदाजा हुआ कि लोगों को एक ही चीज की तकलीफ थी, पीपल वर डेमोक्रेटिक, दे डिड नॉट लाइक दिस फैक्ट, हमसे आजादी छीन ली, बोलने का अधिकार छीन लिया। और वो मुझे, मेरा अपना फर्म बिलीफ है कि ये हमारे लोगों के इतनी ज्यादा अंदर तक घुसी हुई है चीज, किसी की हिम्मत नहीं होगी ये कर सके। हम लोग चाहे 2 वक्त रोटी ना मिले, लेकिन अपनी बात कहने का मौका दे। कोई हमारी मुंह पर ताला ना लगाए। हमारे अखबार, हमारे टीवी चैनल, और जिसके बारे में उनको, पब्लिक को ये लगता है कि ये टीवी चैनल या ये अखबार ये ईमानदारी से बात नहीं करते, ये किसी के प्रेशर में करते, वो दे लूज देयर रेस्पेक्ट। और मैं इसलिए ये दावे से कह सकता हूं कि मैंने इसी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसी के लिए जेल में रहे थे, और कुछ भी हो जाए इस फ्रीडम को हम जाने नहीं दें। और ठीक है, ऑनस्लॉट होते हैं थोड़े बहुत, कभी थोड़ा कोई टाइटनिंग ऑफ स्क्रूज होता है, कभी नहीं होता है। लेकिन दूसरी चीज जो अभी क्यों नहीं हो सकता, ये जो सोशल मीडिया की ताकत है, जो चाइना जैसे मुल्क में जहां इज अ टोटल डिक्टेटोरियल रिजीम, वहां भी बात तो निकलती है। तो ये जो नई पावर है, ये बहुत स्ट्रांग है और बहुत यूजफुल है डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। राइट, आई होप कि ऐसा ही रहे। फिर ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, उसके बाद मैं ऑडियंस क्वेश्चंस लूंगा। तो आपके एसआरसीसी, आपके डीयू वाले टाइम्स में आप स्टूडेंट लीडर भी रह चुके हैं, एंड यू आर गुड फ्रेंड्स फ्रॉम द लेट श्री अरुण जेटली टू इवन communist stalwart Sitaram Yechuri, फिर विजय गोयल जी, शरद यादव, एंड इवन कांग्रेस लीडर्स लाइक राजेश पायलट, जगदीश टाइटलर, गुलाम नबी आजाद, ये लोगों से भी आपकी दोस्ती हुई 70s 80s में। तो अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम आपके फ्रेंड्स काफी यंग यूथ में थे, एंड आपका शायद अभी भी बहुत लोगों के साथ रिलेशन अच्छा ही है। तो हैज पॉलिटिक्स एवर affected your personal friendships? I mean, probably this would be a good for our young audience to hear. Fortunately, see, I made friends with people who never, put any pressure. Arun Jaitley, for example, 45 साल से मेरी दोस्ती थी, 45 years. And कोई दिन ऐसा नहीं होता जब हम बात ना करें. We like family. He was my friend, philosopher, guide, brother, everything. उन्होंने एक बार भी अपने पूरे लाइफ में मुझे ये नहीं कहा कि ये स्टोरी दिखा दो या ये स्टोरी मत दिखाओ। एक एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे सब चीज का जवाब मिल जाएगा। ठीक, अक्रॉस द पार्टी लाइंस दोस्त रहे हैं। अरुण जी से अच्छा कोई दोस्त नहीं था। जब नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी लागू की, अरुण जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और बहुत सारे सवाल थे नोटबंदी को लेकर के, सड़कों पर लाइन लग रही थी, लोग शोर मचा रहे थे।
कहीं शादियां रुक गई थी, कुछ था। तो अरुण जी को मैंने आपकी अदालत में बुलाया और मैंने उनसे अपने अंदाज में सवाल पूछे। अब उन्होंने जवाब दिए, प्रोग्राम खत्म हो गया, रिकॉर्डिंग। उस जब प्रोग्राम खत्म हुआ, जब हम अरुण जी को हमारे साथ लंच करना था, फिर उन्होंने कहा नहीं मुझे फोन आ गया पीएम का, मुझे जाना पड़ रहा है। बैठे तो माय वाइफ हु डायरेक्ट्स द शो एंड शी हैज बीन डायरेक्टिंग दिस शो फॉर ऑल दीज 25 years ऑलमोस्ट, एंड ऑब्वियसली फैमिली की वजह होने से वो भी अरुण जी के काफी क्लोज है। उन्होंने मुझे कहा कि यू वर वेरी हार्श टू योर फ्रेंड। आई सेड यू वर अनफेयर, दिस इज नॉट गुड, एंड शी वाज वेरी एंग्री। I said, look, I don't know. When I was doing a program, I so got involved. मुझे पता नहीं, अगर मैं था तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे पूछना ही था। शाम को अब मुझे एक और बड़े सीनियर पॉलिटिकल लीडर, मेरे दोस्त, अरुण जी के भी बहुत दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही प्रोग्राम वो शनिवार को टेलीकास्ट हुआ, उन्होंने कहा पंडित जी यू आर वेरी अनफेयर, भाई दोस्तों को तो छोड़ दिया करो। तब मुझे लगा कि शायद मैंने वाकई में ज्यादा पूछ लिया, ज्यादा उनको परेशान कर दिया। तो नेक्स्ट डे संडे था, ही वाज स्टिल इन द ऑफिस। मैंने फोन किया, मैंने कहा अरुण जी मुझे कुछ बात करनी है। कि लिए यार मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो मीटिंग चल रही है, जरूरी है। मैंने कहा जरूरी है, तो अच्छा आ जाओ। आई वेंट टू हिम, आई टोल्ड हिम अरुण जी आई एम वेरी सॉरी। से क्या हो गया, किस बात का सॉरी भाई? तो आई सेड कि मैंने वो आपसे कुछ ज्यादा हार्श सवाल पूछ लिए। सर कहाँ? आई सेड आपकी अदालत में। सर नहीं यार, तुम्हारा काम है सवाल पूछना, मेरा काम है जवाब देना। तुम एंकर हो, मैं पॉलिटिशियन हूँ। ये नूरा कुश्ती थोड़ी लड़ रहे थे हम, मिली जुली कुश्ती थोड़ी लड़ रहे। ये क्या बात है, ये किसने कह दिया तुम? आई थॉट हिज मैन इज सो जनरस, सो बिग। आई टोल्ड हिम नहीं, मुझे कई लोगों ने, किसने कहा? मैंने कहा नहीं मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे 2-3 लोगों ने कहा, इसलिए मुझे लगा। इससे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुमने जो पूछा ठीक किया, मैंने जो जवाब दिया ठीक किया। अच्छा चलिए थैंक यू। मैंने कहा मैं चलता हूँ। मैं जब जाने लगा तो लंबा कमरा है वो काफी, मैं कॉरिडोर तक आया, फिर अरे इधर आओ, इधर आओ, बुलाया। नहीं सर, अरे मैंने भी तो तुम्हें ठोका था, मैंने भी तो तुम्हें ये जवाब दिए थे, मैंने भी तो तुम्हें कहा था तुम काला धन वालों के वकील लग रहे हो। So he had this in him, complete Democrat. And I will say that most of the people that we have named who have been my friends, nobody has ever told me. Our Prime Minister, 5 years ago, I did Aapke Wadalat with him. This time again, at the time of elections, I did a show with him, which was one of the most watched show. कभी नहीं कहा कि ये पूछो या ये मत पूछो या हमें कोई सवाल एडवांस में दे दो, बिल्कुल नहीं। आई थिंक दिस इज द म्यूचुअल रेस्पेक्ट दे नो, एंड दे नो दैट दिस इज व्हाट आई एम। एंड ये इसलिए नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि इनकी कोई इंटेंशन, नियत खराब नहीं। ये आई थिंक ये जो बिलीफ है, ये ट्रस्ट है, ये मेरे बहुत काम है। राइट। Mukulesh, do we have time to take some audience questions, 1 or 2 audience questions? Yeah, we may take 1 or 2 audience questions, and just quick questions are yeah. Sure. तो एक ये audience question ये है sir, what is the difference between our country media and US media? Recently the TRP cases happened. Are you thinking about making a forum or agency that can control Indian media? Two things I must say, that something which people are not aware. One, for the broadcasting media, there are definitely a lot of complaints, lot of concerns. So broadcast media, we have created a body called NBSA, News Broadcasters Standards Authority. It is headed by Supreme Court retired Judge Justice Arjun Sikri, and he has 4 eminent citizens with him. Anyone who has any complaint against any channel, they can write to the channel, they can write to the NBSA. And NBSA, though, has been created by this News Broadcast Association where I am the president, but we have no say in it. Right. They take action. If we make a mistake, they ask channels to apologize. They at times they fine, and at times they can recommend to the government suspension of the license of the channel. Right. It's a very, very strict body. Right. एक और क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल साइड पे है, बट आई थिंक No, most welcome. No problem.
So the question goes, as everyone calls it Godi media, how much does the current government or politicians actually affect the current Indian media, and how much is India TV affected? Actually, no one else affects. India TV तो खैर किसी की हिम्मत ही नहीं है कोई करे, but other channels also I will say, देखिए, एक कोई आदमी ये रिक्वेस्ट कर दे आप मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा देना या मेरी रैली दिखा देना, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसके राइवल क्या है। अगर आप नरेंद्र मोदी की रैली दिखाएंगे तो ममता बनर्जी की भी दिखाएंगे, Right. आप अगर अरविंद केजरीवाल को दिखाएंगे तो आप अखिलेश यादव को भी दिखाएंगे, कोई रोकता नहीं है। ये सब आप लोग देखते हैं, कि मेरी ओपिनियन ही छोड़ दीजिए, आप सब लोग देखते हैं क्या इंडिया टीवी पे, क्या दूसरे न्यूज चैनल्स के ऊपर, क्या आपको सारे लोग नजर नहीं आते? सारे लोग नजर आते हैं, सारे लोग की बात होती है। कोई एंकर किसी को फेवर कर देता है, कोई एंकर किसी को फेवर कर देता है। तो ये जो ये सोशल मीडिया में एक फ्रेज चला है, उसको जरूर लोग एंजॉय करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि सोशल मीडिया में तो बिल्कुल नेगेटिविटी होती है। मैंने आप कोई भी चीज आप कर दीजिए, आप on my 64th birthday I donated 64 lakh rupees to the Uttarakhand government, कि वहां जो वो बाढ़ से लोग परेशान हुए थे उनकी मदद के लिए, उसको भी लोग क्रिटिसाइज करेंगे। और आपने क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया कि एक आदमी जो अच्छा काम करेगा उसको आप बताएंगे लोगों को, तो फिर 10 और लोग इंस्पायर होते हैं, और उसकी वजह से 10 और लोग इंस्पायर हुए। ये तो 64 लाख थे, वहां पर 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए देने वाले लोग आए। तो ये एक टेंडेंसी है, और ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है एट द कॉस्ट ऑफ माय ओन थिंग, कि ये इन चीजों से दुख होता है, क्योंकि ये लगता है कि आप कुछ भी कर लो, कितनी भी ईमानदारी से आप काम करो, वो आपको कहेंगे ही कहेंगे। आपके ऊपर प्रेशर है, आप डरते हैं, आप बिक गए हैं। इनिशियली these things used to affect us, but now we all news broadcasters discuss it and we don't bother about it. Right. There are some people who are in our own broadcasting fraternity, वो अपने चैनल पे बैठ के हमें गाली देने लगते हैं। Initially we thought क्या करें, we decided we'll ignore it, जिसको जितना गाली देना दे, because ultimately it is the public who has to decide. Right. आप लोग जो हैं, आप लोग तो एजुकेटेड समझदार लोग हैं, आप लोग अब सिर्फ अगर सोशल मीडिया की बात ना देख करके आप खुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिस पर मीडिया क्रिटिसिज्म करने में डरता हो या हमको कोई रोकता हो। और ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, अपने लेवल पर कह सकता हूं, मुझे आज तक कभी किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, कभी किसी ने, बल्कि मैं तो इस बात पर आश्चर्य होता है कि हम कभी कभी गलतियां कह देते हैं, जरूर से ज्यादा किसी को कहते हैं, पीपल आर लिबरल और वो एक्सेप्टेड। मैंने आपको अरुण जी का एक एग्जांपल दिया। Right. Thank you, Rajat ji, for answering our questions, and we had a very, very enlightening conversation. Thank you very much. Thank you. I had a very good time with all of you, and I really, really appreciate you asking these questions, because actually whatever doubts you have in your mind, somebody has to answer, somebody has to understand this. So it's a great time I had, and thank you very much. Thank you. And kudos and thanks to Students Opinion Society, Public Policy and Opinion Cell, IIT Kanpur, and their coordinators Mukulesh, Aditya, Akash, and Prateek for organizing this event. Thank you so much. Thank you for those who joined in. Thank you, Rajat sir, again. Thank you.